إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية حدث بني إسرائيل ولا حرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری قسم کی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے تمام کائنات کو نزول فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں. اس اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسے عظیم نعمت سے مال و مال فرمایا ہے. جو اسلام میں الحمدللہ پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین ہم کو جو عنایت فرمایا ہے، جو گفٹ دیا ہے، جو تحفہ ہمیں نصیب فرمایا، الحمدللہ اس کی بہت عظیم فضیلت اور اہمیت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا شخص دوڑتے ہوئے آیا جس کو یہ پتا چلا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے اور لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کے جو ہے جوابات دے رہے ہیں. ایک نبی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک غیر مسلم جن کی عمر 80 سے زیادہ تھا، تو وہ ایک غیر مسلم ایک جو بوڑھا شخص جن کی زندگی پوری گناہوں میں جو ہے گزر چکی تھی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب وہ شخص کو پتا چلا تو دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے وہ شخص یہ کہنے لگا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں میں سنا تھا کہ آپ ایک اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے. آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل کو جو ہے جواب دیتے ہیں، حل کرتے ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے، میں ایک بوڑھا ہوں جو پوری جوانی آج تک بھی، بوڑھے پن تک بھی گناہوں میں جو ہے میں گزار چکا ہوں، یعنی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہر قسم کے گناہ میرے سے ہو چکے ہیں. کیا آپ کے پاس آپ کے دھرم میں جو مذہب آپ پرچار کر رہے ہیں، آپ کے اسلام میں اس کا کوئی سلوشن ہے کیا؟ اس کا کوئی حل مل سکتا کیا؟ ایک بڑا شخص اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سوال کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا آپ اسلام قبول کریں؟ کیا آپ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ؟ یہ کیا آپ کلمہ پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہنے کے بعد وہ شخص یہ کہا، میں تو اسلام قبول نہیں کیا، میں غیر مسلم ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کلمہ پڑھنے سے آپ کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یعنی وہ شخص آ کے یہ کہنے لگا میں اتنے گناہ کر چکا ہوں
हूं अगर मेरे गुनाहों को इस मखलूकात में बांटा जाए, मेरे गुनाहों के गफलत से, गुनाहों के जो है बुराई से तमाम जितने भी मखलूकात है वो जो है बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे गुनाह मैं करके आया हूं। यानी उसकी पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापन तक इतने गुनाह कर चुके हैं जिसके वजह से अगर मखलूकात में बांटा जाए तमाम मखलूकात वो जो है बर्बाद हो जाएंगे। इतने गुनाह करने के बावजूद वो शख्स जब अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ये अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा पढ़ाए, उसके बाद वो शख्स से अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके पूरे गुनाह माफ हो गए, यहां से जा सकते हैं। वो ताज्जुब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते या नबी, मेरे जितने भी गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, मेरे होश आने से लेके ये बुढ़ापन तक जितने भी मैं गुनाह किया, ये तमाम गुनाह क्या माफ हो सकते हैं? वो शख्स ये कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके पूरे गुनाह माफ हो गए, आप यहां से जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। सूरह फुरकान चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात फरमाते हैं, अगर सच्चे दिल से अगर कोई कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, गैर मजहब से जो लोग ईमान को अपनाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, उनके तमाम गुनाहें माफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। एक ऐसा रिलीजन, ऐसा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदाशी तौर पर हमको इनायत करा, पैदाशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है ये तोहफा दिया है जिसकी कदर आज हमारे पास नहीं है। और सही हदीस एक रिवायत में यह आता है, अगर कोई कलमा पढ़ते हैं, सच्चे दिल से अगर कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो उनका मिसाल इस तरीके से दिया गया है कि एक बच्चा जब माँ के पेट में से जब पैदा होता, उस बच्चे में कोई कसूर नहीं रहता, कोई गुनाह नहीं होता, इस तरीके से उसके पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। जंग खैबर का वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू करते हैं। जंग का मैदान यह होता है, मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड होता है, हॉस्पिटल में वो जो है इलाज के वक्त जो है हॉस्पिटल में उसका क्रिटिकल कंडीशन होता है, जब उससे गुफ्तगू करने के दौरान हम जो है बिजनेस की बातें नहीं करते या कोई हंसी मजाक नहीं करते, जो अहम जो चीजें हैं वही करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खैबर का मौका, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग के मैदान में भेजते वक्त ये कह रहे हैं, अली आपके जरिए से अगर एक भी इस्लाम कबूल करते 100 सुरुख ऊंटों से बेहतर है। जो रेड कैमल जो होता है आज की जो अरब की सरजमीन पे बड़े शौक से वो लोग पालते हैं, जो करोड़पति लोगों के पास रेड कैमल जो लाल ऊंट होता है, आज के जमाने में अगर आप हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी कीमती आज का कोई BMW कार या चापर जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे 100 BMW से बराबर है आपके जरिए से अगर कोई भी ईमान में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत है। दूसरे रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आपके जरिए से अगर एक भी ईमान में आते हैं तो सारी दुनिया की जो भी दौलत है उससे बेहतर है। सुभान अल्लाह। तीसरी रिवायत है, आपके नजात के लिए ये काफी है अगर आपके जरिए से अगर एक भी ईमान में आते हैं। देखिए कुरान में बेशुमार आयतें रहने के बावजूद भी मुसलमानों की जिम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बताने के बावजूद हम ये दावा का काम नहीं कर रहे। लेकिन आज ईसाई जो नसारा जो तबका है, इसको देख लीजिए, डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक आज 17% पे आंध्र प्रदेश में जो है ईसाईयत पहुंच चुकी है, जो एक कुछ अरसे के बाद अगर वो क्रिश्चियनिटी एक स्टेट बन जाएगा तो कोई ताजुब करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से वहां पर हुकूमत और वहां के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जिनको पहली बार जो है ना एक दलित या जो है धेड़ी मजहब, यानी ये तो इस्लाम में ये बातें कहना नहीं है लेकिन एक कम मजहब माना जाता है, इस मजहब को भी जो है लोग अपना रहे हैं क्योंकि उनके पास जाके तबलीग करने के वजह से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो दीन दिया है एक बेहतरीन दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास अगर कबूलियत होने वाला मजहब अगर कोई है तो सिर्फ इस्लाम है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर इस्लाम के अलावा दूसरे दीगर मज़ाहिब से अगर कोई नजात पाने की कोशिश करता है वो आखिरत में खसारे में है, वो किसी हालत में नजात नहीं पा सकता। यानी यहाँ के दुनिया के सेमिटिक नॉन सेमिटिक रिलीजन जो भी देख लीजिए, बुद्धाइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, पारसिज्म, जितने भी मजहब हैं यहाँ पर इस्लाम भी है। लेकिन इन सारे मज़ाहिब में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 83 में
इस्लाम जो अल्लाह का मजहब है, जो इंसानियत के लिए वे ऑफ लाइफ है, इस मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब को आप इख्तियार करना चाहते हैं तो आखिरत में आपका कोई जो है मुकाम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो कल आखिरत में खसारा में रहेगा जो इस्लाम को छोड़ के दीगर मज़ाहिब में जो जिंदगी गुजारता है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन जदान एक शख्स था जो सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट था, बहुत बड़ा जो है एक्टिविस्ट था जो सोशल वेलफेयर के काम अंजाम देता था। जैसा कि आज हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनका नाम जो है सोशल वेलफेयर के कामों के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि मदर तेरेसा है। इस तरीके से कुछ लोग हैं, उनके नाम इस मेंबर पे मैं लेना नहीं चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वेलफेयर काम में अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिस्सा है। वो लोग जो है अलग अलग भगवानों के डिवोटीज है, उनका जो है अलग एक तरीका है, उनका एक रिलीजन है, उनका एक मजहब है, ये तमाम वो चीजें हैं। अब्दुल्ला बिन जदान एक शख्स था जो मक्के में था, जिनके पास जो है वेलफेयर कामों में बहुत बड़ा हिस्सा लेते थे, यानी यतीमों की किफालत लेना, बेवाओं की मदद करना, और कोई जरूरतमंद है तो उनकी जरूरत को पूरा करना, और इस तरीके से बहुत नेक काम करते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना में जो है आपसे सवाल कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सहाबी सवाल करें कि अब्दुल्ला बिन जदान का जो है अगर वो यही हालत में वो मौत वाज़े हो जाती तो उनका क्या मुकाम है, तो वो तो जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो जहन्नमी है। क्यों? अगर उनके पास कोई ईमान नहीं है तो सारे अमल बर्बाद होने वाले। सूरह 67 चैप्टर नंबर 67 में अगर आप देखेंगे आयत नंबर 37 चैप्टर नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। सूरह जुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर नंबर 69 में भी ये वाक़या आपको पेश आता आयत नंबर 32 में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस बात का वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सूरह जुमर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देते हैं, ऐ नबी अगर आप भी शिर्क करते आपके तमाम अमल बर्बाद हो जाते। यानी अगर कोई अच्छा शख्स है हमारे एरिया में, हमारे वतन में, हमारे स्टेट में, हमारे मुल्क में, अगर कोई अच्छा शख्स है उसके पास ईमान नहीं है, उसके सारे अमल बर्बाद होने वाले, इसका कोई जो है आखिरत में इसका कोई अजर मिलने वाला नहीं है। दुनिया में उसका नाम हो जाता, नाम रोशन होता, लोग कहने लगते फलाना शेख बहुत अच्छे शख्स है, बहुत अच्छे काम करे, लेकिन उनके पास अगर ईमान नहीं है तो सारे अमल बर्बाद हो जाने वाले। मेरे भाइयों, ईमान की कैफियत समझो। जैसा कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कल क़यामत के दिन तराजू के दो पल्लों में एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा रखा दिया जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में दुनिया की तमाम दौलत रख दिया जाए, तो कलिमा का जो वजन होता वो सबसे बड़ा भारी होता। अल्हम्दुलिल्लाह उस कलिमा को पैदाशी तौर पर जो है हम उसको लिए हैं, अल्लाह रब्बुल हमको दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलिमा पढ़े, हम मुसलमान बने, लेकिन इसकी फिक्र और इसकी जो अहमियत, इसकी फजीलत आज हमारे पास नहीं है। जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनके घर वालों को, माँ बाप को, उनके रिलीजन को, उनके रिश्तेदार को, उनके फ्रेंड सर्किल को, तमाम चीजों को छोड़ के जो इस्लाम कबूल करता उनसे पूछिए उनके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पैदाशी तौर पर हम मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कलिमे की दावत जो है पैदाशी तौर पर हमको भाई जो है 40 मुस्लिम्स हम लोग बन चुके हैं, तो हमारा क्या ये फरीजा बनता एक बार सोचने की सख्त जरूरत है। मेरे भाइयों, जैसा कि आज पोस्टर में आप लोग देखे हैं मौजूदा हालात और मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आज मौजूदा हालत अगर हम देखें तो जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक शक्ल को इख्तियार कर चुका है, आज अगर हम देखेंगे तो जो सिचुएशन हमारा है, डर के मारे लोग घरों में से निकलना, अभी 3 महीने से पहले आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक गए 100 महीने तक आप देख लीजिए घरों में से कोई निकलने के लिए जो है लोग डर रहे थे। किस तरह से डर रहे थे? मास्क जरूरी, आज भी मास्क तो पहनना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, आज जो है हमारे माशरा में किस तरीके से लोग जो है ना एक दूसरे से मुसाफा करने से, शेक हैंड करने से, मिलने से, गुफ्तगू करने से, रिश्तेदार घर पे आने से, कोई फंक्शंस में अटेंड करने से, शादियां पोस्टपोन हो गए, हमारे जो है ना एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, स्कूल्स को जो है ना बंद किया गया है और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो अपने आप को सेलिब्रिटीज के आज जो सोसाइटी मान रही है, लोग घर के जो है शिकार हो गए, घरों में बर्तना धोते हुए, झाड़ू मारते सोशल मीडिया में पोस्ट हम देखे हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को एक चीज बता दिया, अगर मैं चाहता हूं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज घर के हवाले हो जाएंगे, अगर मैं चाहता हूं दुनिया का पूरा निजाम चेंज करने के लिए कोई बड़ा वक्त तो नहीं लगता। कुन फयकुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई इरादा करता है तो वो हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को लॉकडाउन नहीं बल्कि शटडाउन में बिठा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। मुल्क के बड़े बड़े जो अमेरिका के जैसे जो है वहां के जो सरदार, वहां के जो मिनिस्टर्स जो होते हैं, वहां के जो बादशाह जो होते हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो लोग जो है उनके आंखों के पर नींद तक नहीं है
कि वो लोग हर हमेशा सोच रहे कि दुनिया कहां पर जा रही, क्या हो जा रही। आज वाकई अगर देखेंगे तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 10 लाख ही मौत हुए, 10 लाख डेथ्स आज तक जो हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। लेकिन हमारे पास जो शिद्दत की तरफ से जो डर हमारे दिलों में जो बैठ चुका है, जो डर रहे हैं घर से निकलने के लिए, एक से गुफ्तगू करने के लिए, कुछ कारोबार करने के लिए, हमारे पास इस तरीके से डर का माहौल पैदा हुआ है। मेरे भाइयों, ये जो कोरोना से जो हम लोग डर रहे हैं, इसमें सिर्फ 10% अगर हम अल्लाह से डरेंगे, पूरे मामलात हमारे सीधे हो जाएंगे। सिर्फ 10%, 90% की बात मैं नहीं कह रहा हूं। सिर्फ कोरोना से जिस तरीके से हम डरने लगे, अगर अल्लाह से 10% अगर ये यहां के लोग, यहां की हमारी जो कौम है, मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर ये डरने लगेंगे तो सारे चीजें जो है दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कोरोना से अल्लाह रब्बुल आलमीन, कई जिना के अड्डे बंद हो चुके, कई स्पा सेंटर्स आज हैदराबाद में जो जिना के अड्डे बन चुके हैं, ये बंद हो गए। और शराब खानों में जितने जितने गंदे जो कामा होते हैं, तमाम वो चीजें कुछ हद तक बंद हो गए। जो हमारे बहनों के ऊपर जो रेप हो रहा है, वो रेप भी पूरा रेशो कम हो गया। कई ये बुराइयां जो है कम हो चुके हैं। बात बताने की यह जरूरत है, जिस तरीके से हम कोरोना से डरे, जिस तरीके से हम सिर्फ 10% भी अल्लाह से, हमारे जो वतन के लोग, हमारे जो मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम, अगर अल्लाह से डरेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल हमारे तमाम मसाइल को दूर कर देंगे। देखिए, हम कभी भी हमारे दिमाग में, हमारे ख्वाबो ख्यालात में ये बात नहीं आई कि भाई लॉकडाउन होना क्या चीज है। हमको जो है 25 साल, 35 साल, 40, 51 साल के जो है जो भी उम्र वाले यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो हमको हमारी जिंदगी में कभी भी ये हालात नहीं देखे कि आज कोरोना के मारे लोग जो है तमाम वो सेल्फ वॉलंटरी तौर पर गांव में आज भी जो है ना सुबह में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकान वगैरह खोल रहे, 2 बजे से जो है ना घरों में बैठ जा रहे। और सोशल डिस्टेंसिंग, पूरे पर्दे आप व्हाइट कलर के जो प्लास्टिक के पर्दे आप देख सकते हैं, और मास्क में वो डिफरेंट क्वालिटीज के मास्क पहना, सैनिटाइजर हाथ में रखना, तमाम चीजों की जो है एहतियात करना आज हमारे माशरे में देख रहे। कुछ महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अल्लाह के करीब हुए, कुछ लोग फिल्मा गाने, उनकी अलग दुनिया है, वो दुनिया में रहे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वाकया हमारे सामने पैदा कर जिसमें ईमान वाले कौन है और जो है ना बेईमान वाले कौन है, जिसमें अल्लाह की तरफ पलटने वाले कौन है और फिर वही गंदगी में रहने वाले कौन है, तमाम नक्शा हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन बता दिया। तो बात यह है, ये जो कोरोना आज हम जो देख रहे हैं, हमारे जो उम्र आज तक जो है 34-35 ईयर्स के जो हम लोग हैं, तो आज तक भी ये माहौल नहीं देखे। लेकिन आज एक ऐसी बात मैं आपके सामने जो बताने वाला हूं कि आज जो हम जो हालात देखे, पूरे दुनिया भर के जो लोग जो कोरोना से डेथ हुए सिर्फ 10 लाख से 10 लाख लोग मर गए। लेकिन हिस्ट्री हमको ये गवाह दे रहा है, इससे बहुत खतरनाक वबा इस दुनिया में फैल चुकी है। लाखों ने बल्कि करोड़ों के लोग जो है मौत, उनकी वाकई मौत हुई है। जैसा कि अगर हम हिस्ट्री को अगर देखें, 1347 से लेकर 1351 अगर आप देखें, जिसको बबोनिक प्लेग कहा गया, जिसको हिस्ट्री में गूगल में सर्च करिए कि ब्लैक डेथ कहा गया है, ये यूरोप में आया। जिसका एक बीमारी आने का वजह है चूहे और मक्खियां, चूहे और मक्खियों के जरिए से बबोनिक प्लेग जो ब्लैक डेथ कहा गया है, यूरोप में ये शुरू हुआ। तो इस बीमारी से अगर आप देखेंगे तो 200 मिलियन लोग का डेथ होगा, यानी 200 मिलियन लोग मर गए जिनकी मौत होगी। कब? ये 1347 से 1351 के दरमियान ये मौत वाकई इस सरजमीन पे हुई है। यानी 20 करोड़ लोग एक वबा से, जो पैंडेमिक एपिडेमिक आज जो माना जा रहा है, इसी तरीके से जो पैंडेमिक एपिडेमिक जो ये वबा है, ये वबाई के वजह से 1347-1351 में 200 मिलियन लोग यानी 20 करोड़ लोगों की मौत हुई सरजमीन पे। इस सरजमीन पे हुए सो एक वाकया है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंसानों की जो मौत हुई अगर आप देखेंगे तो 1520 में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी की वजह से वहां अगर आप देखेंगे तो 56 मिलियन लोग मर गए, यानी 5 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हुई इस सरजमीन पे। अगर कोरोना से आज तक हम जो डर के घरों में मास्क पहन लेके अजीब शक्लों के साथ घरों में बैठे हुए हैं, मास्क तो पहनना है, इसका दूसरा जो है ये बात नहीं है, लेकिन आज जो हम हमारे घरों में डर के मारे बैठे हुए हैं, सिर्फ 10 लाख लोग आज के तारीख में मरे हुए पूरी दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में
10 लाख लोग मरे हुए हैं, लेकिन 1520 में स्मॉल पॉक्स की वजह से 5 करोड़ 60 लाख लोग मर गए। ये दूसरे नंबर पे आता है स्मॉल पॉक्स। तीसरे नंबर पे अगर आप गौर करें, हिस्ट्री को अगर देखिए, तारीख के ऊपर अब नजर डालें तो द स्पेनिश फ्लू एक बीमारी है। 1980 और 1919 में द स्पेनिश फ्लू एक बीमारी थी जिसके वजह से 4 to 5 करोड़ लोग मर गए, यानी 30 to 40 मिलियन लोगों का वाकई डेथ हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो 1918 बहुत ज्यादा जो है वक्त नहीं गुजरा, 1990 जो 1919 जून में अगर देखेंगे तो तारीख हमें जो है गूगल रिसर्च हमको ये बताता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे जो देश के जो सिपाही थे वो अदर कंट्री गए वहां लड़ने के लिए, वो लोग फिर वापस में स्टीमर के जरिए से बॉम्बे के सरजमीन पे, वहां पे वो किनारे पे, समुद्र के किनारे पे उतरे। जब वो लोग वहां की बीमारी को, जो पैंडेमिक बीमारी थी उनको जो लगा था, फिर वहां पर बॉम्बे में आप देख सकते हैं वहां का लोगों के घर बाजू बाजू रहना और एकदम जो है वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो बॉम्बे में ये बीमारी शुरू हुई। तो ये वाकया हमको जो है ये बताता, ये पूरे यानी द स्पेनिश फ्लू जो बीमारी को हमारे जो सिपाही लोग वहां से लेकर आए, फिर यहां पर जो पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो वहां पर 4 से 5 करोड़ की पूरी दुनिया में डेथ होगी। सिर्फ इंडिया में, हमारे भारत में, सिर्फ इंडिया में 1 करोड़ 80 लाख लोगों का डेथ हुआ। 1 करोड़ 80 लाख सिर्फ हमारे इंडियंस मर चुके हैं उस टाइम पे 1919 में। और महात्मा गांधी जिनका उम्र 48 ईयर्स था, अपनी किताब में लिखते हैं इस बीमारी के वजह से दुनिया में यानी और जीने का ख्वाहिश मेरे में मर चुका है, मैं मरने की तलब कर रहा हूं। एक ईमान वाले को मरने की तलब नहीं करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही मुस्लिम में। तो महात्मा गांधी ये कह रहे हैं ये बीमारी इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से अगर मौत हो गई तो मेरे लिए अच्छा है। अपनी किताब में लिखते हैं उस टाइम पे महात्मा गांधी का एज था 48 ईयर्स। ये तारीख के 3 चीजें मैं आपके सामने बताया। सबसे बड़ा ब्लैक डेथ, 20 करोड़ लोगों की जो है मौत हो गई 1347 1351 में। सेकंड डेथ आप देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स 1520 में अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ 60 लाख लोगों का डेथ हो गया। तीसरा डेथ द स्पेनिश फ्लू 4 से लेके 5 करोड़ लोगों का डेथ हुआ, ये तीसरे नंबर पे। फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे तो जस्टिनियन प्लेग, द जस्टिनियन प्लेग एक बीमारी थी, ये क्रिश्चियन एरा में हुआ। अगर देखेंगे तो 541 से 542 में अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन एरा में, तो ईसा सदी में अगर आप देखेंगे तो 3 से लेके 4 करोड़ लोगों का जो है डेथ हुआ, 30 to 40 मिलियन लोगों का डेथ हुआ है इस बीमारी को लेकर। ये लास्ट था, यानी 541 542 क्रिश्चियन एरा के बाद अगर हम तारीखी में देखें अभी कोरोना से मरने वालों की तादाद ज्यादा आपको मिलती है। इसके बाद अगर हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो उससे पहले ये मौत आपको जो है कोई रिसर्च में नहीं दिखता, और कोरोना के बाद, कोरोना से पहले यानी आपको जस्टिनियन प्लेग के बाद अभी अगर मौतें देखेंगे तो इस वक्त हमारे पूरी दुनिया में 10 लाख कोरोना से मर चुके हैं, तकरीबन 19 लाख तक जो है 90 लाख तक हमारे पास 1 करोड़ जितने भी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग उसके पॉजिटिव जो केसेस है, फिर जो है रिकवरी होना, ये तमाम वो चीजें हैं। लेकिन कोरोना से पहले यानी अभी जो कोरोना इस अंदाज से लोगों की जो मौत हो रही है, तो ये बात समझना और गौर व फिक्र करने की सख्त जरूरत है। हर 100 ईयर्स को एक बार, हर 100 साल को एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसा वबा हमारे सामने लेकर आ रहा है। हर 100 ईयर्स को एक बार, अगर तारीख को जो भी मैं डेट्स बताया हूं वो कैलकुलेशन कर लीजिए, हर 100 ईयर्स को एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसानों को एक चौकन्ना करने के लिए, इंसानों को सोचने के पर तदब्बर करने के लिए एक वाज़े कर दे रहा कि भाई तुम सोचो कितना भी टेक्नोलॉजी आप कहां पर भी जो चांद पर जाओ, सितारों के ताल्लुकात के जो भी आप तहकीक करो, लेकिन एक ना एक दिन तुमको मट्टी में मिलना है, और जो तुमको पैदा किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम सोचना है। इस गौर फिक्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर 100 ईयर्स को एक बार ऐसा एक वबा को हमारे सामने लेकर आ रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो। लेकिन अफसोस की बात यह है हम ये बीमारी से, जब ये बीमारी आ गई, ईमान वाले खुद बड़े बड़े साइंसदारों के ऊपर, साइंटिस्ट और डॉक्टर जो प्रोफेसर होते जो लैब में जिनकी तहकीकात होती, ये कौन ऐसा शख्स है जो इसको वैक्सीन कहां से, कौन सा यूरोप निकालेगा, रशिया निकालेगा और चाइना निकालेगा, अमेरिका निकालेगा, इस तरीके से जो है लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि जो अल्लाह जिसको जहन दिया है, जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टरों के ऊपर हमारा भरोसा है। यकीनन डॉक्टर्स हमारे लिए एक नियमत है, साइंटिस्ट हमारे लिए एक नियमत है, लेकिन इन साइंटिस्टों को, इन डॉक्टरों को जब तक
اللہ رب العالمین دماغ نہیں دیا تب تک یہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ رب العالمین جو سوچ ہمارا جو دماغ ہے, اگر جانور اور انسانوں میں اگر فرق کو ہم محسوس کریں گے, جانور کوئی تحقیق نہیں کرتا, جانور کو اپنے بچوں کی شادی کرنے کی فکر نہیں ہوتی, جانور کو جو ہے دوسرے دیگر گھر بنانے کی, آج ہم دنیا کے جس میں مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے, ایسے مسئلے مسائل میں جانور نہیں ہے, بلکہ انسان سوچنے کے اوپر جس کو دماغ دیا ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو جانوروں کو بھی دماغ دے سکتا, اور جو ہے آج جو ویکسین ہے, اگر یہ انسان کو اللہ رب العالمین جو برین دیا, جس کے علاوہ اگر ہاتھی کو, ایلیفینٹ کو اگر دماغ دیتا, ایلیفینٹ کرونا کا ویکسین کو جو ہے تحقیقات کر کے آج دنیا میں عام کر سکتا ہے, لیکن ایسا کوئی جانور نہیں کر سکتا, شیر, بلی, ببر کوئی نہیں کر سکتا, صرف انسان ہی کر سکتا. انسان کو اللہ رب العالمین سوچنے کا, تدبر کرنے کا ایک ذہن کیپیسٹی, ایک برین پاور اللہ رب العالمین دیا ہے. میرے بھائیوں, جو بھی وبا آج ہمارے سامنے ہے, اس کے تعلق سے ایمان والے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے. آج ہم جو ہے لوگوں سے ملنے سے, بات کرنے سے, گفتگو کرنے سے کہیں پرہیز کر رہے ہیں, کرنا بھی ضروری ہے. اسلام میں کوئی کیا بھائی ایسا نہیں ہے کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ہم کیا احتیاط کیوں کرنا ہے. اس تعلق سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, کچھ صحابہ آئے بیعت کرنے کے لیے. بیعت کرنے کے لیے اس ٹائم پہ کلمہ کیسا پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ پہ ایسا, آپ وہ جو صحابہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی رائٹ ہینڈ ایسا رکھ کے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کراتے تھے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ, بیعت کرنے کے لیے کچھ صحابی آئے, کچھ لوگ آئے, جس میں سے ایک شخص کو جو ہے ایک وبا تھی, ایک ڈیزیز تھا, ایک بیماری تھا, جو آج پینڈمک ایپیڈیمک جو کہہ رہے, اس طریقے سے ایک بیماری تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ٹھہر جاؤ, آپ کا بیعت ہم نے قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا, یہ حدیث سے ہم کو جو ہے یہ روایت ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, صحت مند جو اونٹ ہوتے ہیں, بیماری اونٹوں سے آپ اس کو جو ہے ملاوٹ مت کرو, ایک جگہ اس کو نہیں باندھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یعنی اس کو علماء کرام جو ہے اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر صحت مند انسان, بیمار انسان, دونوں کو جو ہے یہ یعنی انسانوں سے یہ کمپیئر کر سکتے. اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جدھر وبا پھیل چکی ہے, اس بات کا آپ کو علم ہوگا, اس وطن کو, اس شہر کو آپ مت جاؤ. جس وطن میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اگر وبا ہو چکی تو وہ پلیس کو چھوڑ کے یہاں پر آپ مت آؤ, دوسری جگہ مت آؤ. یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ, جو چیک پوسٹوں کا کمپلیٹ جو ہے نا, ایئرپورٹوں کو آج جو ہے بند کر کے, جو بھی ہمارا جو ٹرانسپورٹیشن پورا کمپلیٹ بند ہو گیا, تو یہ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے حدیث میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو یہ نالج ملتا ہے, اور اس کے اوپر ہم عمل کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات, یہ تمام ہسٹری, تمام تاریخ آپ کے سامنے بتانے کے بعد, ایمان والے ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. آج موجودہ حالات میں لوگوں کے الگ الگ ایمان ہیں. کچھ لوگ جو ہے فون کر کے کہتے ہیں, بھائی اگر اللہ رب العالمین ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے تو ہم کو کیوں مصیبت میں ڈالے. ایک شخص میں جو فون کر کے یہ کہنے لگا, بھائی ہم جو ہے اللہ کی 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم یہ مصیبتوں کے شکار کیوں ہو رہے ہیں. ہمارے اطراف رہنے والے جو کفار ہے وہ مست مزے میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے ایمان بھائی کا سوال ہے. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے, ہمارے گھر والے کووڈ-19 کے جو ہے شکار ہو چکے ہیں, بھائی ہم کیا غلطی کریں, ہم تو ایمان والے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, ڈیلی ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ بھی دعا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ الناس, فلق, تمام دعاؤں کی پابندی کریں. اس کے باوجود بھی جو ہے یہ کووڈ-19 ہم کو کیوں اٹیک ہوا. ایسے بھی لوگ ہیں. اسی لیے پہلے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, جو بھی ایمان قبول کرتے ہیں, چاہے تو پیدائشی مسلمان ہو, جو نیو مسلمس ہو, ہم کو نالج کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نالج وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث, جو الحمدللہ جیسا کہ ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو MBBS کرنا تو ڈاکٹر مانا جاتا. اسی طریقے سے ایک انجینئر ہے, اس کا سلیبس ایک الگ ہوتا. اسی طریقے سے ایک دین کے دائی ہوتے, جو اسپیکر ہوتے, جو عالم ہوتے, تو قرآن اور حدیث کا نالج ان کو رہنا ضروری ہے, جو عوام الناس تک بتانا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے ایمان کمزور ہو سکتا. قرآن میں سورہ فرقان چیپٹر 25:2 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, فقدرہ تقدیرا, تقدیر کے اوپر تم ایمان رکھو. جس کا ارکان ایمان ہے اللہ کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر, اللہ کی کتابوں کے اوپر اور تقدیر کے اوپر, اچھا اور برا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا. یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ایمان نہیں رکھے, کبھی ایک نو مسلم پلٹ کے جا سکتا, کبھی بھی ایک پیدائشی مسلمان ایتھیزم کی طرف ناستک ہو سکتا ہے, ایتھیسٹ ہو سکتا. جیسے کہ کئی مسلمان ہیں, کچھ ہمارے سے دعویٰ فیل میں ہم سے جو ٹچ میں رہتے, وہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہنے لگتے, بھائی اللہ واقع ہے تو یہ پریشانی ہم کو کیوں ہو رہا. تو یہ لوگ ایک فریم بنا دیے, یعنی اللہ رب العالمین
जो कायनात को चलाने वाला, तमाम चीजों को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कायनात को अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि हम मखलूक है, वो खालिक है। लेकिन ये मखलूक, हम जैसे इंसान, जो नादान इंसान, जो कम नॉलेज रखने वाले, अपने आप को ये समझ रहे भाई अगर अल्लाह यहाँ पर है तो यहाँ पर कड़ी धूप क्यों है, अगर अल्लाह है तो हमारे घर में जो है ये जो है ना लंगड़े लोग क्यों पैदा हुए, अगर अल्लाह है तो गरीब क्यों है, अमीर सिर्फ अमीर रहना था, अगर अल्लाह है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से फसाद क्यों हो रहा। ये तमाम वो चीजें जो है, जो एथ्यूइज्म जो होता है, एथीस्ट जो जिसे कहते हैं, वहां से ऐसे क्वेश्चन से जो ईमान, कुरान और सही हदीस के जो नॉलेज नहीं रहने की वजह से आज हमारे पास भी कभी कभी ढामाडोल हो जाता हमारा ईमान, कभी कभी हो जाता अल्लाह अकबर ये मुसीबत क्यों आ रहे मेरे साथ, अरे ये परेशानियां क्यों आ रहे, ऐसा कुछ हो सकता। तो ये चीज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। आप घर को जाके कुरान खोलकर देख लीजिए। सूरह यूनुस चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कोई परेशानी तुम्हारे पास आती है वो अल्लाह के तरफ से होता है। अगर अल्लाह कोई परेशानी में तुमको डाल देता है, कोई इंसान इस परेशानी से तुमको दूर नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ कोई खैर का मामला करता, वो खैर से तुमको कोई नहीं रोक सकता। जो कोई बीमारी, जो कोई मुसीबत है, ये अल्लाह की तरफ से। सूरह यूनुस चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिए। तो बात यह है, ईमान वालों को क्यों मुसीबतें आते, चाहे ईमान वाले हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मुसीबतें आने के चार अलग अलग किस्म के होते हैं। चार किस्म के, ये याद रखिए, ईमान वाले हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चार किस्म के जो है मुसीबतें, आजमाइशें हमको अल्लाह की तरफ से होते, जिसमें इंसान अगर सुधर गया, संभल गया, उसकी आखिरत संवर जाती। इंसान और शिद्दत के साथ एथिस्ट भी बन सकता, नॉलेज नहीं रहने की वजह से। ये चार किस्म की मुसीबतें क्या है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहली मुसीबत इंसान को जो पहुंचती है वो अल्लाह के तरफ से इम्तिहान, जिनको इम्तिहान, जैसा कि ईमान लाने के बुनियाद पर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और कई ऐसे सहाबा थे जो इस्लाम कबूल करे। इस्लाम कबूल करने पर उनके ऊपर मुसीबतें आए, ये अल्लाह के तरफ से एक आजमाइश है। जैसे कि कुरान में सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 214 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं, क्या जन्नत यूं ही मिलने का तमन्ना आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग यूं ही जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, आपसे पिछले लोगों के ऊपर जो मुसीबतें टूट पड़ी है वो मुसीबतें तुम पर अभी नहीं आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो है ये कह रहा है, क्या जन्नत में ऐसा ही जाने का एक सोच रख बैठे हैं आप लोग। आपसे पिछले जो ईमान वाले जो साहबा है, उनसे पहले वाले जो अंबिया है, उनको उनके ऊपर ईमान लाने वाले, इन तमाम लोगों का तरह तरह उनको किस तरह से सता दिया गया है, ये एक हिस्ट्री तुम्हारे बीच में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए, क्या ईमान लाए, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर आप जन्नत में जो है दाखिल हो जाने के ये सोच में बैठे हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल कर रहा है। एक अल्लाह के तरफ से आने वाले जो मुसीबतें हैं, ये पहली अल्लाह की आजमाइश है। ये ईमान वाले तकरीबन लोगों के साथ ये हो सकता, जैसा कि सहाबा के साथ हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 टाइम्स, 17 मरतबा उनको अटेम्प्ट करे, यानी कत्ल करने की कोशिश करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 3 साल शेब अबी तालिब अब मक्के से बाइकाट करे अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ईमान लाने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देने पर मजबूर करे। सुमैया रदी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिए। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को कड़ी धूप में बहुत एक बड़ा पत्थर उनके जो है दिल के ऊपर रखे, उनको सता दिया गया है। इस तरह से प्रॉपर्टी छीन लिया गया है और कई सहाबाओं को कत्ल कर दिए और उनको बेइज्जत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, गिलासत, ऊंट की गिलासत उनके जो है सर के ऊपर डाला गया। ये तमाम वो चीजें ईमान लाने के बुनियाद पर हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब इस्लाम कबूल करे, वो भी जो है हिजरत करने लगे। ऐसे कई सहाबा है ईमान लाने के बुनियाद पर, जब वो हिजरत कर रहे थे कि वो बॉर्डर पे वो लोग मक्का के कुफर उनको पकड़ लिए, भाई तुम कहां पर जा रहे, हम ईमान लाए, हम मदीना चले, तो पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के चले, प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले गए ईमान के खातिर। ये ईमान लाने के बुनियाद पर मेरे पर, आप पर, हर इंसान पर जो है ना ये मुसीबतें आ सकती हैं। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर जिनको जेल की सजा काटना पड़ा। सूरह यूसुफ चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 21-22 में आप देख लीजिए। बेकसूर यानी ये एक यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई दावती काम करते हुए, लोगों को समझाते हुए सजा नहीं काटे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक जो खातून उनको जो है एक बुराई की तरफ, जिना की तरफ जब दावत देती है, अल्लाह के डर से वो रुक जाते। उनके बाद फिर तौमत बांधा गया है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल को गए। तो
यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जिनकी जेल की सजा हुई कितने साल है, तो तफसीर में हमको आता है 6 ईयर, 6 साल बेखुसूर जो है वो जो है सजा काटना पड़ा। इसी ताल्लुक से अगर देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ देना पड़ा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश करे, और तरह तरह सहाबाओं के साथ और सहाबियात के साथ अंबिया के साथ ये ईमान लाने के बुनियाद पर हुआ। ये मुसीबत है, ईमान लाने पर जो मुसीबतें आते हैं, ये पहला मुसीबत है। दूसरे तरीके के जो मुसीबत है वो ये है इंसान के खुद के करतूतों की वजह से, खुद के मिस्टेक की वजह से भी मुसीबत आते हैं। एक तो अल्लाह की आजमाइश है, जो सहाबा है ईमान वाले हैं, जो कलमा पढ़े हैं, जो नौ मुस्लिम है, इनके साथ अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है। तो फर्स्ट नंबर 1, 4 बताऊंगा मैं, एक बता दिया। दूसरा यह है कि जो इंसान के करतूतों की वजह से खुद कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से कुछ आजमाइश होते हैं। जैसा कि कुरान में सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 32 में वला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम जिना के करीब भी मत जाओ। इंसान को जब जिना करने से परहेज करने के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन जिना के करीब भी मत जाओ। आज जिना के आज कई अड्डे हैं, आज देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आज जो है ना सोशल मीडिया पे जो है एक डेटिंग एप्स जो है ना, लोग मुसलमान खुद उसको डेवलप कर रहे, उसको जो है तैयार करके क्रिएट करके उसको जो है लोगों में आम करने की कोशिश कर रहे। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब मत जाओ। इंसान जब जिना के करीब चलेगा इसका नतीजा क्या निकला, एड्स जैसी बीमारी आज जो है हमारे मुआशरे में है। और सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 में अगर देखें तो हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंजीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं खिंजीर यानी सुअर को खाना हराम है। आज अगर देखेंगे तो जो ये खिंजीर खाने से, जो स्वाइन फ्लू इससे पहले एक जो बीमारी थी, ये खिंजीर खाने से जो है इंसानों में आज जो सबसे ज्यादा जो हार्ट पेशेंट, जो हार्ट अटैक जिनको स्टेंट डालने की जो जरूरत पड़ रही वो अमेरिका में है। अमेरिका में आपको 23 ईयर्स आप 17 साल से जो है हार्ट अटैक एक शुरू हो गया। क्यों? वहां पर खिंजीर खाते हैं, जिसके वजह से वो गोश्त खाने की वजह से वो गोश्त में जो बारीक जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखने वाले जो जिरासिम जो रहते हैं वो इंसान के जिस्म में जाके वो अंडे देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉक हो जाता, ब्लड रुक जाता, जिसकी वजह से वो लोग हार्ट पेशेंट्स बन जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि खिंजीर मत खाओ। और खून खाने से जो ना, खून जो आज भी गैर मुस्लिम का एक तबका बकरा या बकरी काटे तो जो है वो लोग खून पकड़ कर खाते हैं। अगर कोई एक पेशेंट को लेके जाएंगे तो सबसे पहले अगर वो बुखार या कोई बीमार होता सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते, क्योंकि ब्लड टेस्ट में बीमारी जो है पता चलती, इसीलिए वो ब्लड को खाने से मना किया गया है। और इसी तरीके से कुरान में सूरह माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 90 में अगर आप देखेंगे तो पीना यानी शराब से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक दिया है। शराब पीने से, शराब को हराम कह दिया गया है। शराब पीने से अगर देख लीजिए पूरा एक फैमिली सिस्टम पूरा बर्बाद हो रहा है। शराब के तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे, और लोग जुआ खेल रहे, जुआ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हराम कह दिया है। जुआ खेलने से आज गैर मुस्लिम में क्या क्या हालत पेश आ रहे, कुछ ऐसे नादान हमारे मुसलमान भी इसके शिकार है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को मना कर दिया उस काम को करने से एक मुसीबत होती है। जैसा कि कुरान में सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 41-42 में अगर देखेंगे तो जमीन और पानी में जो कोई फितना मचल चुका है वो इंसान के करतूतों की वजह से है। इंसान के चंद कामों उनके सामना करने के लिए हम ऐसे आजमाइश इंसान के सामने रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुछ इंसान के मिस्टेक्स की वजह से उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। दो चीजें, एक ईमान लाने की बुनियाद पर अल्लाह की आजमाइश, दूसरा इंसान कोई बुरा काम करने से, कोई गलत काम करने से जिसके ऊपर अल्लाह की आजमाइश होती है। दो किस्म की। तीसरा किस्म यह है कि तीसरा किस्म की आजमाइश है, एक इंसान है अच्छे से बुराई से कुछ ताल्लुक नहीं है, उसका अच्छे से नहीं है, बुरे से नहीं है। घर में से जो है फजर की अजान सुने आई, अच्छा नमाजी पढ़ने वाला नमाज के लिए जब उठा, घर से मस्जिद थोड़ी दूर पे थी, हाईवे क्रॉस करके जाना था, जब बाइक पे जा रहा, हाईवे से क्रॉस कर रहा, अचानक गाड़ी आगे एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। अब ये तो अच्छा इंसान है, अल्लाह के राह में जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा उसको एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हम सुने? बिल्कुल सुने। एहराम बांध के उम्रा में बस में बैठे हुए एक्सीडेंट हो गया, 40 लोग मर गए। ऐसे कई लोग हैं शहीद हो गए। तो ये ईमान वाले अल्लाह के राह में जब जा रहे तो ये मुसीबत क्यों आ रहे? तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी एक हदीस बताएं। तो ये तीसरा किस्म का आजमाइश में बता रहा हूं। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ये है कि वो बंदा जिनको अल्लाह के राह में नमाज पढ़ने के लिए निकले, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज पूरे बेड पे हो गए, वो खतरनाक जो ना रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो ये है कि वो शख्स
चंद ऐसे गुनाहें किया है जो अल्लाह को उस शख्स के अलावा थर्ड पर्सन को नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में ही उसका सजा देके आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन वो उसके आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जो है नजात देना चाहता है, उसको जन्नत देना चाहता है, चार लोगों में इसकी बेइज्जत नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो शख्स वो गुनाह जो किया है उसको और अल्लाह के अलावा थर्ड पर्सन को नहीं मालूम है, गुनाह को जो है धोने के लिए, गुनाह को माफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुसीबत के सामने ठहरा करता है। जब बंदा जब वो मुसीबत में सब्र करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब जो है उसके गुनाह पूरे माफ हो जाता है, क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी बात को सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 155 में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते भूख से और खौफ से, जान से, माल से, औलाद से और आपके कारोबार के नुकसानात से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जरूर आजमाएगा। अलग अलग किस्म से आपको एक जान का भी धोखा हो सकता और कुछ खौफ हो सकती, क्या हो जाएगा आज पूरा दुनिया में देखिए तो एनआरसी सीए का क्या हो जाएगा, एक खौफ है, खौफ से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाता, डर से भी आजमाता और अल्लाह रब्बुल आलमीन माल से आजमाता है। ये तमाम जो आजमाइश है, आजमाइश में अगर हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही आयत में 156 में कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहेंगे कोई मुसीबत आए तो हम अल्लाह के जानिब से अल्लाह की तरफ जाने वाले, वो सब्र करेंगे तो वो सब्र के बुनियाद पर वो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। ये तीसरी किस्म है। चौथा किस्म का आजमाइश ये है, एक शख्स है वो अच्छा इंसान है, कोई अच्छे से बुरे से कुछ वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, मुत्तकी है, नमाज पढ़ने वाला है, उसको अचानक एक ऐसी मुसीबत आ गई जो मुसीबत देख के लोगों में ये हुआ भाई इतने अल्लाह वाले आदमी, इतने नमाजी हैं, इनको ये मुसीबत क्यों आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से जो हमको मालूम होता है, वो शख्स जाहिरी तौर पर बातिन तौर पर कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे आजमाइश में डाला, बहुत खतरनाक आजमाइश है। ये क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो शख्स जो अच्छा इंसान है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, बातिन और जाहिर तौर पर कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन इसको ये आजमाइश क्या है, वो आजमाइश ये है कि वो शख्स जिसके अच्छे कामों के बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत पे आला मुकाम देना चाहता है, लेकिन ये शख्स जो अमल कर रहा है जन्नत हासिल होने के लिए, वो जन्नतुल फिरदौस या आला मुकाम पे पहुंचने के लिए इसके नेकियां बस नहीं होंगे, ये कम पड़ जाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक ऐसे मुसीबत में डालेगा, वो मुसीबत आने के बाद वो जब सब्र करता है, वो सब्र के बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करेगा उसको जो मकाम में जन्नत के जो बड़े मुकाम देना चाहता है उस मुकाम पे पहुंचाएगा। ये चार किस्म के जो आजमाइश है, ये आजमाइश इंसानों को आते रहते हैं, लेकिन आज हमको कुरान और सही हदीस का सही जो है इल्म नहीं होने की वजह से आज कुछ लोग ऐसे भी है जो है नमाज पढ़ते हैं, लेकिन के चंद डाउट से उनके दिमाग में ऐसे सवालात क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से कुफर के तरफ ले जाते हैं, जिसके तरफ जो है लोगों को कुछ ईसाइयाँ जो है पैदाशी मुसलमान, एक बदनसीब ऐसे लोग हैं पैदाशी मुसलमान है लेकिन जो है ईसाई में मिल गए, जब उनको पूछेंगे कहीं को हमको जो है ये मुसीबत आई, जब जो है हम फलाना जिनको मान लिया ईसा को तो हमारे मुसीबत दूर हो गए तो हम ईसाई बन गए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मुर्तद के शक्ल, जब जैसा कि आपको मालूम है हदीस में अगर कोई ईमान लाने के बाद अगर मुर्तद हो जाएंगे, इस्लाम अगर गवर्नमेंट है तो उनको कत्ल का जो है कत्ल वाजिब होता है उनके ऊपर और बहुत बड़े गुनहगार बन जाएंगे। तो इनको सही इल्म देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे भाई जैसा कि आपके सामने में बता दिया था कि आज के मौजूदा हालात में जो मुसलमानों की जो आज जो है एक ईमानी जो कैफियत है, भाई ये तमाम कई को हो रहा क्या हो रहा, भाई इसमें हमारे को क्या नसीहत है, इससे हम सुधरे या नहीं सुधरे। देखिए आज कई लोग कोरोना से, इस वबा से जो है इस दुनिया को से जो अल्लाह को प्यारे हुए सो कई लोग हैं जिसके मौत वाजे हुई, लेकिन आज हम क्या है, आज जो है अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो अल्लाह के पास हमको जो है कड़ी जो है पूछ रहेंगी। तो और ये उन्वान में ये चीज मैं बताना वाजे समझता हूँ, जितने भी भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अगर जन्नत में जाना है, हमारा ख्वाहिश अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर्स कुछ भी बनाना है अपने अपने, ये शॉर्ट टर्म गोल है। रहते जाते अगर कोई, इससे पहले क्या होता वरंगल में, एक वरंगल का एक शख्स का एक वाकया पेश आया था जो एमएस कर लिया, एमबीबीएस एमएस सर्जन बनने के बाद जो है वो एयरपोर्ट से गाड़ी जो है हायर करके वो जा रहा था, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। घर के पास दोस्त अहबाब पूरे लोग आए, फूल की हार
लेकर उसको इस्तकबाल करने के लिए डोल भाजा लेकर जो है इंतजार कर रहे थे, वही डोल भाजा उसके डेड बॉडी के ऊपर डाले। ऐसे भी वाकयात है। यानी हम एक टारगेट लगा लेते दुनिया का, एक डॉक्टर बनना या IAS IPS कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल है जिसमें इंसान कामयाब होने के बाद, पट्टा लेने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद उसकी डेथ हो सकती है। यानी ऐसे कई लोग हैं। शमशाबाद में एक शख्स जो है जमीनों का जब रियल एस्टेट एक बूम हो गया तो करोड़ों के पैसे उसके जो है ना 15-20 एकड़ जो जमीन बेचा, इतने पैसे है, वो पैसे देख के उसको हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं हाउस ओपनिंग में, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, घर के जो है ओपनिंग में, जैसा ओपनिंग होते ही जो है वो हार्ट अटैक आके मर गए सो है, अपने बाथरूम में पैर फिसल के मर गए सो कई लोग हैं। तो ऐसे कई वाकयात हमको है। तो 7 समुंदर तीर के जो है पीछे से एक नाले में डूब के मर गए सो कई लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक इंसान अपने ये गोल को हम रीच होते नहीं मालूम, अगर होने के बाद या होने से पहले भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है, हम जन्नत से आए हैं और जन्नत में ही जाना है। तो जन्नत में जाने का तो तमन्ना मैं रख रहा हूं, आप तमाम मुस्लिम उम्मत हम रख रहे हैं। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल अस्र है। सूरह अल अस्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे, वल अस्र, जमाने की कसम, इल्ला लदीना आमनू, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे सारे इंसान खसारे में है, इल्ला लदीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल करे, व तवासौ बिल हक, हक की दावत दे, व तवासौ बिस सब्र, जो सब्र को इख्तियार करे। यानी आप और हम जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रब्बुल आमीन 4 कंडीशन जो रखे हैं, उसमें चौथा जो कंडीशन है वो ये है कि दावत, तीसरा जो कंडीशन है वो दावत का काम, वतवासौ बिल हक, हम लोगों को समझाना, पहुंचाना। हम मुसलमान हैं, बेबर्थ मुस्लिम से, हमारे पास कुरान है, ये तमाम वो चीजें हैं। हमारा जो रिस्पांसिबिलिटी है, हमारा जो मकसद है क्या है, हमको मालूम है। कुरान हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है, हुदल लिन नास है। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल मुस्लिमीन है, रहमतल लिल आलमीन है। हम कौन है, उखरिजत लिन नास, पूरी दुनिया को गाइड करने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले, हक की दावत देने वाले, कुरान पहुंचाने वाले, इस्लाम जन्नत जहन्नम के सामने रखने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जिम्मेदारी हमको दिया है। जैसा कि 1,24,000 अंबिया इकराम जो आए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातमुन नबीयीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले। ये जिम्मेदारी आप और हम पर निभाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी अजीम जिम्मेदारी से, जो जिम्मेदारी को नहीं निभाने की वजह से हम जो है कल जन्नत रुकावट बन सकती है। जो हमारे वतन के गैर मुस्लिम, ये कापरा नागरम, यहाँ के जो दमाईगुड़ा के जो गैर मुस्लिम अतराफ के जो हिंदू ईसाई भाई है, कल क़यामत के दिन वो लोग जो है शिकायत करेंगे, ये अल्लाह, ये अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, ये लोग हमारे साथ जिंदगी गुजारे, हक नहीं बताए, ये लोग रोजे रखे, हमको रमजान क्या है नहीं मालूम था, ये लोग कुरान तिलावत करते थे, हमको नहीं मालूम था। अल्लाह अकबर। आज भी एक गैर मुस्लिम का बहुत बड़ा जो है ना फिरका, बहुत बड़ी तादाद में लोग ये मान रहे मेरे भाइयों, मुसलमान भी खबर की पूजा करते हो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज भी गैर मुस्लिम बड़े बड़े ऑफिसरों के जहनों में ये है कि ये भी लोग हैं खबर की पूजा करने वाले हैं। और आज के गैर मुस्लिम अक्सर लोग ये हैं अल्लाह अकबर का माना भी आज तक नहीं मालूम। गैर मुस्लिम ये सवाल कर रहे, भाई अजान में 5 टाइम आप अकबर को क्यों पुकार रहे, बाबर और जो ना जहांगीर कई बादशाह रहने के बावजूद? ये गैर मुस्लिमों का सवाल है। आज अल्लाह के पास हमको कड़ी पूछ होंगी, अल्लाह के पास ये गैर मुस्लिम, हम जन्नत में जा रहे, अल्लाह के पास जो है ना ये पकड़ेंगे, हमारा जो है ना कालर पकड़ेंगे, ये पूछेंगे। दावत का काम करना बहुत जरूरी है, हमारे वतन के गैर मुस्लिम को इस्लाम पहुंचाना। इस बात से अगर हम महरूम हो जाएंगे, कल क़यामत के पास अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कुरान में 6236 आयतें हैं, जिसमें 525 आयतों में अल्लाह ने शरीय अहकामात को बता दिया। 6236 में 525 को माइनस करेंगे, 5711 आयतें आपको मौजूद रहेंगे। 5711 आयतों में अल्लाह गैरों को इस्लाम की दावत दो, इस्लाम को नाफिज करो। और ये एक कुरान में अगर देखेंगे तो पूरी कुरान अल्लाह अकबर, सबसे पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन है, रब्बिल आलमीन है। यहां से तदब्बुर शुरू होना, अल्लाह सिर्फ मेरा रब नहीं है बल्कि मेरे गैर मुस्लिम पड़ोसी का, हिंदू का भी रब अल्लाह ही है। जब कुरान को पढ़ते पढ़ते तकमील कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कुरान क्लोज करेंगे, कुल अऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, अल्लाह लोगों का नास का रब है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग कहां से करा एक बार देख लीजिए। और कुरान में वाकई अगर आप देखेंगे तो कुरान में इस बात को और गौर फिक्र करेंगे तो कुरान में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के नाम पे एक चैप्टर नहीं है।
जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वालिदा का नाम क्या है, आमिना है। आमिना के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से एक चैप्टर है। ये मरियम से क्या हमारा लेन देन है? ये मरियम में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह के बेटे नहीं है। ये जो ना ट्रिनिटी नहीं है, तीन में एक हिस्सा नहीं है। जैसा कि बाप बेटा रूहुल कुद्दुस का जो अकीदा वो लोग मानते हैं, उसको कंडम करने के लिए एक चैप्टर को अल्लाह ने नाजिल करा। किस लिए नाजिल करा, एक बार आप समझिए। जैसा कि कुरान में मोर देन 1000 आयतों में साइंटिफिक एविडेंसेस है। ये साइंस से हमको क्या लेन देना है, लेकिन एक युग यानी आज का जो है जमाना एथ्यूइज्म की तरफ जा रहा है, जो साइंस के दलाइल से लोग इस्लाम कबूल कर सकते हैं। 1000 साइंटिफिक दलाइल आप कुरान में देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़िमुस सलाह, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी नमाज, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नमाज के लिए हम पैदा हुए, इबादत के लिए पैदा हुए, लेकिन वो इबादत कैसा करना हमको जो है कुरान में नहीं हदीस में जाना पड़ता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहा है कि दावत का काम करो, इस्लाम लोगों तक पहुंचाओ, कुंतुम खैरा उम्मा, ये तमाम चीजें मुसलमानों की जिम्मेदारी बताएं। दावत का काम करने के कई चैप्टर्स कुरान में। आप जो नास्तिकों को कैसा समझाना, गैर मुस्लिम हिंदुओं को कैसा समझाना, क्रिश्चियंस को कैसा समझाना और लॉजिकली कैसा उनके क्वेश्चनों को आंसर देना, ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बताया। अगर कुरान में हमारे जो हिंदू, दावत का मतलब ये नहीं कि आज जो है ना घरों में जो है घरा मल्ले के दावत देके लोगों को 50-50 लोगों को खिला के भेज दे रहे, वेराइटी डिशेस, इसके बारे में नहीं। दावत वो चीज है जो हमारे हिंदू, जो क्रिश्चियन, हमारे वतन में रहने वाले, उनको इस्लाम समझाना, उनको कभी घर पे बुलाए, कभी उनको समझाए। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जब हिदायत मिली, नबी बने, तो कितना काम करे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस दिन कलिमा पढ़े उसी दिन 7 लोगों को लेकर आए, गैर मुस्लिम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत कराए, जो इस्लाम कबूल कराए। मेरे भाइयों, ये दावत का काम जो गैरों में इस्लाम का तबलीग करना, ये फर्ज आइन है। ये काम नहीं करने की वजह से कल जन्नत हमारी रुकावट बनेंगे। जन्नत में जाने से जो है हमारे गैर मुस्लिमों को पकड़ेंगे। तो दावत का काम करना है इंशाअल्लाह। फिर एक बार हम एक इरादा करेंगे, यहाँ के दम्माईगुड़ा के जो गैर मुस्लिम से इनको बुलाएंगे, उनको इस्लाम की दावत देंगे। या कोई जितने भी लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी है उनको एक घर में बुलाओ, कोई एक इस्लाम के दाई को बुलाओ, उनसे गुफ्तगू करो, ताकि वो मुझे बुलाना ऐसा कोई नहीं, जो भी तेलुगु जानने वाला, जो भी अच्छा जो है समझाने वाला, जिसको तेलुगु लैंग्वेज है जो समझाने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुलाओ, घर में बिठाओ। और जो है आपके अतराफ की जो गैर मुस्लिम से जो है 1 to 1 उनसे जो है डिस्कशन पे आप ये करिए। आपके जरिए से इस्लाम कबूल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हुज्जत पूरा हो जाता। इस्लाम कबूल करे तो आपके लिए जन्नत है, आपके लिए बहुत बड़ा सवाब है। अगर इस्लाम कबूल नहीं करे तो आपका हुज्जत पूरा हो जाता। ये कंप्लीट जो है ना हम काम करना है। हम मायूस हैं, हम नहीं भाई ये गैर मुस्लिम कहाँ कबूल करेंगे, अल्लाह अकबर। एक ईसाई जैसे मजहब में बड़े बड़े कैस्ट वाले, ओसी वाले जब दाखिल हो जा रहे, तो इस्लाम के ऊपर ये भरोसा हमको नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे कट्टर आदमी जब इस्लाम कबूल करे, तो यहाँ की क्या लोग हैं कि इनकी क्या हैसियत है। एक बार सोचिए मेरे भाइयों, दावत का काम करना है। जो भी नौ मुस्लिम है उनसे अच्छी गुफ्तगू करिए, उनके भी मसले मसाइल में आप लोग कुछ भी कर सके तो उनके साथ रहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन यही आमाल, यही काम हमको जो है काम आने वाले हैं। भाई बता रहे थे कि 10 मिनट तेलुगु में बताओ, लेकिन अभी वक्त नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी हम जरूर ये करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे गलतफहमियां हैं। अगर मैं एक मेंबर हुए तो अभी उर्दू में बात करना, ऐसा नहीं। अगर तेलुगु गुफ्तगू के जरिए से अगर अतराफ की कोई गैर मुस्लिम अगर समझ गए, माशाल्लाह बहुत बड़ा उसका जो है ना नतीजा निकलेगा। जैसा कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, सूरह इब्राहिम चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो वतन के लोग लैंग्वेज जाने वाले लैंग्वेज पे तुम बात करो। यही अंदाज से हम अंबिया को भेजते थे। मेरे भाइयों, ये तेलुगु लैंग्वेज आज का जो है 11 करोड़ पॉपुलेशन में ये इंडिया में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज तेलुगु है। और 57 कंट्रीज में आप देखेंगे तो तेलुगु के लोग वहां पर पहल चुके हैं, वहां पर है। यूट्यूब में कुछ व्यूवर्स पे भी हमको मालूम होता है। और ये लैंग्वेज क्या है, जब तुम लैंग्वेज को भूल जाएंगे, लैंग्वेज आपको नहीं आता तो क्या कर सकते आप लोग। ऐसे लैंग्वेज बात करो जिसकी वजह से गैर मुस्लिम मुतासिर होना, ऐसा जो है उनसे संभाषण, उनसे जो है आप गुफ्तगू करो जिसकी वजह उसके दिलों में इस्लाम का जो है रूहानियत उसमें उतरना। उस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ भी करना, कोशिश भी करना, ट्रेनिंग भी लेना, हर किस्म में हम तैयार रहना कि इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है ये मस्जिद में एक हम दावा ट्रेनिंग कैंप भी चलाएंगे अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। और यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं उनको हम इस्लाम की दावत देंगे, एक बार नहीं बल्कि बार बार देना है। जैसा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, वक्त के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत लेकर 72 मरतबा मेरे पास आए। अगर 71 मरतबा अगर छोड़ देते शायद मैं इस्लाम नहीं कबूल करता था। अल्लाह अकबर। एक वक्त के नबी कई कामा रहने के बावजूद एक गैर के पास
72 मरतबा गए, वो फरमाने का 71 मरतबा के छोड़ देते, शायद मैं इस्लाम नहीं कबूल करता था। मैं इसी बात से जो है अपना गुफ्तगू जो है ख़त्म करता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाह कबीरा गुनाह सगीराओं को माफ़ करे, जो जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हमारे से हो चुकी गलतियों को माफ़ करे। हमारे दरमियान जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हमारे जो मुस्लिम उम्मत में गैर मुस्लिम में जो लोग इसके बीमार के वबा के जो है शिकार बन चुके हैं उनको शिफा कामिल आजला अता करे। और हम जो है आज तक कुरान को छुपा के हमारे जो हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों तक कुरान नहीं पहुंचाए है, इस गलती को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करे और हम जो है इस बात से तौबा करें, इस कुरान को चप्पे चप्पे पहुंचाने की तौफीक अता करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलो आया। वक़ाल अल्लाहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खमसीन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामुस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जि व सौमि रमज़ान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व हौला व हम्मु व तम्मु व अकबर।